अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे चैनल देसी एग्रीकल्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। मैं जुनेद अली जनाब ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਲਾਹੌਰ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਵਿਖਾਈਏ ਲਾਹੌਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, 796 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਦੀ ਤਰਫ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਹੌਰ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਲੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਟਰੈਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੋਕਨ ਅਸਾਂ ਖਰੀਦ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਓਏ ਲਾਲਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਓਏ। किरचीत कदरों से होशियार रहें, अपने बच्चों को नहीं भटकी मजदूरी से बचाएं। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया सी छड़े मैट्रो से सफ़र किया वे मज़ा आ गया। ਅਸੀਂ जनाब अपनी लोकेशन ਤੇ पहुंच गए हैं मरकज़े वाला हादसा तहरीक। अल्हम्दुलिल्लाह जी ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਲਾਮਾ ਨਾਇਤੁल्ला खान मशरकी ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਰ ਵਿਖਾ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਇਹ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਮ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਕਸਾਰ ਤਹਿਰੀਕ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ख़त्म ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਉਹ ख़त्म ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। देखो जी माशाअल्लाह एक पढ़े लिखे आदमी हैं तो नहायत ही उन्होंने को इलम सी माशाअल्लाह। तो वेखो कितनी सादा जिंदगी उन्होंने गुजारी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। इस टाइम असी मौजूद हाँ अलामा साहब के पोता जी ने माशाअल्लाह। मैं आप दोनों बच्चों को खुशामदीद कहता हूँ। अब मरकज़ी आला खाकसार तहरीक इचरा लाहौर में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जासन आप और जुनैद आप। मैं तारुफ़ आपको दूंगा अपना कि मैं हज़रत अल्लामा मशरकी रहमतुल्लाह अलैह का पोता हूँ और इस वक्त खाकसार तहरीक की क़यादत जो है वो मेरी ज़िम्मेदारी से एक है। तो जैसा कि आप अपने वालिद साहब का और अपने दादा का जिक्र कर रहे हैं तो यकीनन आप जैसे नौजवान अब इस तहरीक में इसी शौक़ के साथ आ रहे हैं। पिछले दिनों भी एक आए हुए था लड़का, बच्चा था, वो भी इसी तरह अपना तारुफ दे रहा था, वो रावलपिंडी से था। तो मुझे खुशी होती है कि आप जैसे नौजवान जो अपने वालिदैन अपने बड़ों के जो जिस नज़रिए के साथ इस तहरीक के साथ जुड़े वो उसकी तलाश में आते हैं और ये आपका फ़र्ज़ भी बनता है कि हक़ और सच की तलाश में आप, क्योंकि आपके वालिदैन या आपके जो बड़े थे वो जिस तहरीक से वाबस्ता रहे या अपनी जान की, अपनी माल की, अपने फ़र्जंद की, और उस वक्त आप जैसे आप अपने दादा की बात कर रहे हैं तो वो अंग्रेज़ का दौर होगा जब वो इस तहरीक में थे। तो उन्होंने आज़ादी हिंद के लिए जो कुर्बानियाँ दी, क्योंकि इस तहरीक की जो बुनियाद है वो दीन इस्लाम पर थी और ये किसी फ़िरके, किसी मज़हब, किसी उससे बालातर होकर नस्ल इंसानी और उम्मत मुस्लिमा के लिए इन खाकसार तहरीक ने एक ऐसा प्लेटफार्म उस दौर में, अंग्रेज़ के उस दौर में उसकी बुनियाद रखी कि जिससे अंग्रेज़ बहुत
ڈر بھی گیا، خوفزدہ بھی ہو گیا، کیونکہ 1857 کے بعد انگریز نے جس طرح سے ہندوستان پر غاصبانہ قبضہ کیا، اس کے بعد اگر کسی نے مردانہ وار انگریز کو للکارا، اس کے نظام حکومت میں، وہ خاکسار تحریک تھی۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اس کے نظام میں کس طرح سے انہوں نے خاکسار تحریک نے انگریز کو للکارا یا آپ کے دادا نے للکارا؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ 1931 میں جب خاکسار تحریک کی بنیاد ڈالی گئی اور اس کا پروگرام تھا کہ اس دین کو غالب کرنے کا، ماشاءاللہ، اور قرآن کریم کا جو حکم تھا کہ اے نبی اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اس دین کو تمام ادیان پر اے نبی غالب کر دو، چاہے کافروں کو، مشرکوں کو یہ بات بری کیوں نہ لگے۔ اب اس نظریے کو لے کر علامہ مشرقی نے اس دین کے غلبے کے لیے اس تحریک کی ہندوستان میں بنیاد رکھی۔ اب اس دین کو غالب کرنے کے لیے کسی ایک نظام کی ضرورت تھی، کیونکہ انگریز اس وقت موجود تھا، وہ اپنا ایک نظام دے رہا تھا، اور اس کا نظام تھا تقسیم کرو اور حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول کا، سمجھ رہے ہیں؟ اور جس نے آج بھی ہمیں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، سیاسی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر، فرقہ واریت میں، یعنی کہ کوئی ایسا جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر ہم تفرقے میں نہ پڑے ہوں، اس کے مد مقابل ایک نظام دیا جس کو اخوت کے اس بیچ کے ساتھ، انما مومنون اخوتن۔ تو اس نظریے کو لے کر انہوں نے جب اعلان کیا اس چیز کا کہ بھائی مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ تو اپنی اخوت کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر ایمان والے ہو تو ایک رسی میں اپنے آپ کو پرو لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کا وہ سارا جو نصب العین تھا اس کو ایک نظام کے تحت، صرف باتیں نہیں تھی بچے کہ بھائی میں شریعت چاہتا ہوں، میں دین کی پرچار چاہتا ہوں، ہم دین کی پرچار کے لیے، لیکن اس کے لیے کسی ایک نظام کا ہونا ضروری ہے کہ بھائی آپ کیا نظام لانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت علامہ مشرقی نے وہ نظام قرآن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ نظام جو ریاست مدینہ، جو آج آپ سن رہے ہیں کہ ریاست مدینہ، وہ ریاست مدینہ کا وہ نظام میں عدل، وہ نظام معیشت، وہ اساکرانہ نظام جس کی وجہ سے ہم نے یہ وردیاں آج بھی پہنی ہوئی ہیں، کہ وہ پورا ایک نظام کے تحت، کے جس کے تحت وہ عالمی غلبہ، وہ دین الحق کا پروگرام، وہ تمام نصب العین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس طاغوتی نظام کو للکار کر، اس طاغوتی نظام کے مد مقابل ایک اللہ کا دین، اللہ کا پیغام، اللہ کا دیا ہوا نظام نافذ العمل کیا۔ اس نظام کو پھر سے، کیونکہ پچھلے 800 برسوں کی تاریخ اگر ہم اٹھاتے ہیں اور آج بھی ہم اس تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ بھائی ہم وہ تمام نظام کھو چکے ہیں۔ آج دنیا میں جتنے اسلامی ملک ہیں وہ اس تقسیم کرو اور حکومت کرو کہ اس کے نظاموں کے گرفت میں ہیں۔ آج ہمارا پاکستان ہی دیکھ لیں کہ جو سیاسی نظام اس وقت ہمارے اندر رائج ہے اور جس کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جمہوریت آ جائے گی تو جمہوریت ہماری تمام مرضوں کا علاج ہے، لیکن جمہوریت پر قابض وہ اشرافیہ کلاس، وہ جاگیردار کلاس، وہ سرمایہ دار کلاس جو اس وقت سے اس دور سے کہ جب انگریز یہاں سے چلا بھی گیا تو وہ جو نظام ہمیں دے کر گیا اور جس نظام کے تحت ہم چلتے آئے وہ انہی لوگوں کے سپرد کر کے گیا جو اس کے کاسالیس تھے، جو اس کے نظام پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے تھے۔ تو انہی کو جب نظام سونپا گیا تو آج ہماری حالت زار یہ ہے، اور پورا عالم اسلام اس وقت اسی کی گرفت میں کہ کہیں پر بھی اگر ہم کہیں، یعنی کہ نام اللہ پر مرنے والے، رسول اللہ کی شان پر، ان کی اس پر اپنی تن من دھن قربان کرنے والے 1.5 کروڑ سے 1.5 ارب سے اوپر لوگ موجود ہیں، لیکن نظام کہیں پر بھی نہیں۔ وہ جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے بھی اسلامی ممالک دیکھ لیں، وہاں نظام جو ہے وہ والا
नबवी इस्लाम वाला निज़ाम हुकूमत कहीं पर भी नहीं है। कहीं बादशाह चल रही है, कहीं जमहूरियत चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है, लेकिन अल्लाह का निज़ाम नहीं चला। सूदी निज़ाम दुनिया पर काबिज़ है, हम सूदी निज़ाम के तहत हैं, हमारा बच्चा इस वक्त मकरूज़ है उसी सूदी निज़ाम के तहत है। तो इस तमाम चीज़ों पर अल्लामा मशरिकी ने, एक रेंगुलर स्कॉलर थे, बैचलर स्कॉलर थे, फाउंडेशन स्कॉलर थे, बरतानिया में 1912 में उन्होंने यानी कि ट्राइपोजिस एग्ज़ाम दिए, अरबी, फ़ारसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सोशल साइंसेज में 5 साल के कलील अरसे में ये 6-7 डिग्रियां उन्होंने पास की। उसके बाद जब हिंदुस्तान आए तो यहाँ अंग्रेज़ ने उससे कहा कि भाई तुम्हारे मुकाबले का तो कोई ऐसी जॉब ही नहीं है। तो उन्होंने, अंग्रेज़ ने उस वक्त इनको कहा कि आप वाइसराय हिंद के नीचे, अंडर सेक्रेटरी वाइसराय हिंद के नीचे काम करें, आपको एजुकेशन का और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो देते। अल्लामा मशरिकी कहते हैं कि जब मैंने वो नौकरी ज्वाइन की 1912 में, तो फिर मैंने देखा कि ये अंग्रेज़ तो सारा का सारे निज़ाम को इसने यरगमाल किया हुआ है, और यहाँ पर न मुसलमानों को न हिंदुस्तानियों को किसी को कोई हकूक़ नहीं मिल रही। ये तमाम लूट खसूट करके लेकर जा रहा है, और हिंदुस्तान को उसने मकरूज़ कर दिया, हिंदुस्तान को भूखों मार दिया। तो फिर उनकी दिमाग में एक तब्दीली आती है। वो जो गाड़ी अभी आपने देखी, ये गाड़ी 1926 की है, जब वो भी एक शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जब उन्होंने इस चीज़ को देखा और एक दिमाग ने एक पलटा खाया, तो उस वक्त उन्होंने इस गाड़ी को यहीं बंद किया, ये खाकसारी वर्दी पहनी, और वहाँ जो मज़ार है यहाँ पर लाहौर की गर्मियों में बग़ैर पंखे के 1931 में खाकसार तहरीक की बुनियाद डाली। फिर कभी पंखा भी इस्तेमाल न किया, और अंग्रेज़ को नाकों चने चुबवा दी। अगर आप कहें कि 23 मार्च 1940 की करारदाद, तो आपको पता है ना, आपको पता है कि क्या है कि भाई एक यहाँ करारदाद पाकिस्तान हुए थे, और इस पर हम पाकिस्तान 7 साल बाद बना, जो हमें एक तारीख सुनाई भी जाती है। तो आपको ये पता नहीं होगा, यही सबसे बड़ा अलमिया है जिसकी वजह से आपके वालिद ने कहा कि जाओ वहाँ जाकर इछरे में उस अल्लामा मशरिकी की लो के वो क्या था। तो मैं बताता हूँ कि 23 मार्च 1940 तो आपको पता है, लेकिन 19 मार्च 1940 आपको पता नहीं है। वो इसलिए पता नहीं है कि उस दिन तो खाकसारों का खून बहा था लाहौर में, 100 के करीब खाकसार शहीद भी हुए थे उस अलमिये में, जहाँ जब अंग्रेज़ ने सीधी गोलियां चला दी। और फिर उसी खून के ऊपर जब मुश्तैल हो गया सारा शहर, अभी यहाँ पर 10 आदमी मर जाएं तो लाहौर बंद हो जाएगा। तो 100 आदमियों का जब कत्लेआम अंग्रेज़ ने यहाँ खाकसारों का किया, तो उसके बाद तो कर्फ्यू लग गया। एक बहुत बड़ी यानी कि एक रेजिस्टेंस उठा, एक बहुत बड़ी जो है ना वो तहरीक उठ खड़ी हुई कि ये क्या हो गया, जलियांवाला बाग है या किस्सा ख़ानी बाजार का पेशावर का याद है। तो ये तीसरा एक बहुत बड़ा वाक़या था जो तारीख से हटा दिया गया, तारीख के उन औराक से हटा दिया गया। तभी हमारे नौजवानों को पता नहीं है कि भाई खाकसार तहरीक क्या है और खाकसार तहरीक का मजमून क्या है। तो उस वक्त उस खाकसारों की उस कुर्बानी ने असल में बुनियाद रखी इस वतन अजीज़ की, कि उनके खून के ऊपर वो करारदाद में से वो पहलू भी हटा दिए गए कि खाकसारों के खून का बदला लिया जाएगा। वो जिन्ना साहब की उसी 23 मार्च की करारदाद में वो सारी चीज़ें थी जिसको तारीखी बदयानती करते हुए उस तारीख से हज़फ कर दिया गया। तभी तो हमारा नौजवान फिरता है, कभी पंजाब यूनिवर्सिटी से तारीख की डिपार्टमेंट से बच्चे आते हैं, कभी कहीं से आते हैं कि ये जनाब ये कौन है, ये खाकसार कौन है, ये खाकसार तहरीक क्या है। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को डाला गया और हिंदुस्तान की आज़ादी में सिर्फ कांग्रेस को डाला गया, जो अंग्रेज ही की मरहून मन्नत उसी सियासी निज़ामों के तहत, जिस सियासी निज़ामों में आज हम पिसे हुए हैं, उसी पार्लियामानी, उसी जमहूरी निज़ाम, उसी अदलिया, उसी सूदी निज़ाम के तहत हम जकड़े हुए हैं। और उसी निज़ामों की पैदावार वो सियासी जमातें भी थीं। मुझे नहीं पता आपकी हमदर्दियाँ क्या है, लेकिन आपको तारीख़ी हक़ाइक़ बता रहा हूँ। और ये मेरा फ़र्ज़ है कि मेरे पास जो आएगा या मैं जिस फोरम पर खड़ा हूँगा धड़ल्ले के साथ ये बात कहूँगा। ये इसलिए नहीं कहूँगा कि मेरा दादा अल्लामा मशरिकी, लेकिन जो हक़ाइक़ है वो ये बताते हैं कि खाकसार तहरीक ने जो तारीख रकम की है, ऐसी तारीख हिंदुस्तान में किसी सियासी जमात ने रकम नहीं की, पूरी दुनिया में। और उसने जो निज़ाम की बात की है, इस्लामी
तर्ज हुकूमत की, तर्ज निज़ाम हुकूमत की जो तमाम उसका जो ढांचा पेश किया, 1931 में उसकी बुनियाद रखी और 1939 में, यानी सिर्फ 9 साल के कलील अरसे में आपके दादा समेत 2 करोड़ लोग इस तहरीक के साथ वाबस्ता हो गए, जान और माल के साथ, एक हुक्म के ऊपर, माशाअल्लाह। और ये आपको मैं वाकया बता दूं कि अल्लामा मशरिकी ने वो अतात गुजार लोग पैदा किए कि जिसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलती। कि अगर मशरिकी रहमतुल्लाह अलैह कह देना अपने बंदे को कि यहां से जंप लगा दो, तो वो वहां जंप भी लगाने को तैयार थे। ऐसे तभी तो, और ये सारा उस कुरानी फलसफे के तहत था कि अतीउल्लाह अतीउ रसूलुल्लाह अम्र मिनकुम, कि अपने अमीर की अताअत इसी तरह करनी है। और यही बुनियाद है असल में, यही हुकूमत का, हमारी हुकूमत, हमारी इस्लामी हुकूमत का तर्ज अमल है। इसका बुनियादी ढांचे में ये सारी चीजें, ये जो जमहूरियत आई जिसने तमाम शिराजा बिखेर दिया। आज हम गली गली हैं। कल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि फैसलाबाद में 3 भाई हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट एक इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये वही फलसफा है कि तकसीम करो और मजमूई कुव्वत को खत्म करो और फिर इन पर हुकूमत करो। आज हमारा बच्चा है, 2.5-3 लाख रुपए का मकरूज पैदा हो रहा है। हमारी मईशत का ये हाल है कि डॉलर 300 के करीब पहुंच चुका है, पेट्रोल हमारा 300 से ऊपर क्रॉस कर चुका है। हमारे भूख, नंग, अफलास, तंगदस्ती, बीमारी, यह वादे अब नए हो रहे हैं। नए वादों के तहत क्या होगा, इस मुल्क में कौन सी दूध की नहरें बहेंगी, कौन इसका दावा कर सकता है। ये खुद उनके पास जो है ना वो गिरवी रखे हुए हैं, इनकी जायदादें, इमला के सारे इस अशराफिया क्लास, इस जागीरदार क्लास की यूरोप और अमेरिका में रहन रखी हुई हैं। ये अगर उनकी लाइन ऑफ एक्शन को छोड़ेंगे तो वहां उनके जब्त हो जाएंगे। तो ये तो हमारे निजात हिंदा नहीं है। तो फिर हमारा निजात हिंदा कौन है? अब मुझसे ये पूछें कि वो निजात हिंदा कौन है? वो शख्स है जो इसका डायरेक्ट इफेक्टिव है। वो जमहूर का जो बात करते हैं ना कि ये जमहूर को हम ताकत दे रहे हैं, एक वोट से ताकत दे रहे हैं। ये एक वोट ही तो सबसे बड़ा धोखा है। वो जमहूर को असल ताकत देने का सिर्फ वोट ताकत नहीं है। ये अपने होशों से बच्चे निकाल दो। ये वोट तो 5 साल बाद आता है, कभी अक्सर 10 साल बाद आता है। तुम्हारा अख्तियार, तुम्हारे तमाम मसाइल का हल तुम्हारे पास है और अख्तियार की तमाम मुंतकली जो है वो खाकसार तहरीक दे रही है। कैसे दे रही है? खाकसार तहरीक उसी निज़ाम हुकूमत के तहत कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दे रही है कि मोहल्ले की सतह पर, हर शहर में, हर इलाके में जितने मोहल्ले हैं, इलाके हैं, उनमें लोगों को अपनी मदद आपके तहत ताकतवर करने का और इक़्तिदार को उनको सौंपने का तरीका दे रही है। कि गरीब है, अगर वो सलार मुकर्रर होता है तो वो अपने इलाके में एक कुव्वत और ताकत के साथ है और तमाम मसाइल को वो खुद हल करेगा। उसका पूरा निजाम इस खाकसार तहरीक में मौजूद था। तभी 1931 से लेकर 1939 तक 2 करोड़ लोग इस तहरीक का हिस्सा बने। अल्हम्दुलिल्लाह जी पहुंच गया सी हुण लाहौर तो सियालकोट ते हुण इत्थे शाम दा लंगर होण लगा वे। अज तक ले बस इन्ना ही। दुआवां च याद रखो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।